Assalamualaikum, sir. Sir, my name is Ali Abbas and I am accompanied with Mr. Rizwanullah Beg. And today the topic we will given and we will presenting is how can we incorporate circular economy principles to minimize waste and promote resource efficiency. Yes. Sir, the topics we will covering today will be introduction, literature review, methodology, findings, and discussion, and then finally the conclusion. Actually, these are the topics we have collected from our report, and basically report is around 20 to 26 pages, but we have precise in slides in around 15 to 16 slides. So let's start with introduction of EIA. Actually, before starting any project, we have to go for a comprehensive evaluation of the project activities which could affect our environment and our society. Either there's direct or indirect effect, or it's a effect that is just at the time of construction, or it could affect after some times. So we check our designs, we check all these things. ये सारी चीज़ें हम इस तरह चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हो, ऑल दो फॉर कमिंग फ्यूचर ऑल्सो। तो हम एक थोरो एक स्टडी करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें हमें पता चल सके कि हम जो प्रोजेक्ट करें उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इन्वायरमेंट पे क्या है, सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट है इसके, या इसका डिज़ाइन जो है जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हैं नहीं करते। तो दैट इज़ या ये बेसिकली द रिपोर्ट वी मेक टू इंश्योर दिस ऑल थिंग्स। Let's talk about something about the literature review. We have read in the literature review that EIA is a systematic process in which we, yes, identify the projects, identify the problems, issues, we predict it, then we evaluate the potential environmental effects that could be proposed for a sustainable development. एंड हम ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि हमें जो अथॉरिटी से उन्हें उनसे अप्रूवल मिल सके कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो दैट इज़ अप टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड दैट इज़ अप टू द इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो ये पूरा प्रोसेस है। और यस, या ये बनाने में पूरा एक मेथड है जो हमने पढ़ा था, फ्रॉम स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इम्पैक्ट असेसमेंट, मिटिगेशंस, फिर उसकी रिपोर्टिंग, उसकी अगेन रिव्यू, फिर डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस, ऑल आर द की components of EIA. अच्छा, there are two types of economies basically. One we call it linear economy and the second is the circular economy. Linear economy जिसमें हम एक simple straight path follow करते हैं, हमने किसी चीज़ की प्रोडक्शन की, हमने उसे यूज़ किया and then discard किया, dispose किया, that is called linear economy. But in circular economy we use nature resources to produce something, then we use it and then we try to recycle it instead of disposing it. तो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी बनती है। जिस तरह सर्कुलर वर्ड इसको शो करता है, सर्कुलर डेप्थ वगैरह जैसे होते हैं, तो ये इसी चीज़ को शो करता है कि हमारी जो प्रोडक्शन है किसी चीज़ की, नेचर रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं, हम इन दी एंड इसको डिस्पोज नहीं करते, डिस्कार्ड नहीं करते, बल्कि इसे रीयूज़ करते हैं। और यही वो आइडिया है, आइडियोलॉजी है जो EIA को सपोर्ट करता है। Again, here is a pictorial representation of the linear economy and circular economy. We take things from nature, we produce it, in industries, we industrialize it, and we use it, and in the end, it goes to the waste. But in circular economy, we use nature resources to produce something, and it comes in our use, we use it, and instead of wasting it, we go for recycling processes or reuse processes, so that it could again go to the making industry, and we could again use it instead of wasting it and dumping it. So that's the pictorial representation of linear economy and circular.
Here circular economy is a bit elaborated, and here are the, you can say, these are the basic principles of circular economy. We mind things, we design things, we think how it should be designed, impact, then we go for manufacturing of anything, then it goes to the distribution processes where it becomes repackaging or it is restricted in some packages, and then it is used by the consumer, and in the end, instead of dumping it or instead of wasting it, we go for the reconstruction, restore, rebuild, or we could recover it and we could repair it, we would restore it, or how all the possible outcomes which could be here to stop thing to waste from the nature. That is basically the main concept of circular economy. So that a thing that is starting from the nature, that is being designed, it should be designed in a way that after being manufactured, after being used, it should again come to a recycling process. So that's the main basic principle of circular economy. Here the question arises that why circular economy is related to EIA, or how is it related to EI? Basically, circular economy is directly and related to EIA. कि हम किसी चीज़ की EIA करें तो it enhances the life of the project, it enhances the acceptability, social acceptability of the project, ये project को sustainable बनाता है। और ये सर्कुलर इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो चीज़ें यूज़ करें अपनी प्रोजेक्ट में, दैट शुड रिड्यूस मटेरियल, रिड्यूस एनर्जी एफिशिएंट हो, वाटर कंजम्पशंस कम हो, सही है, और चीज़ों के ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, एंड obviously these are the basic principles, or these are the basic things which is needed for a project to कि वो अच्छे से चल सके और एक सिग्निफिकेंट हो सके प्रोजेक्ट। तो सर्कुलर इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स पे चलेंगे हम तो ही हम एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट कर सकेंगे। और EIA और सर्कुलर इकोनॉमी दोनों ही इस चीज़ को इम्प्रूव करते, एम्पावर करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट शुड बी सस्टेनेबल, प्रोजेक्ट शुड यूज़ लेस रिसोर्सेज, लेस एनर्जी, प्रोजेक्ट शुड बी एनर्जी एफिशिएंट और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। तो ये बोथ आर द कॉन्सेप्ट्स जो मिल के हमारे प्रोजेक्ट्स को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। Implementation of circular economy in EIA, बेसिकली हम जब EIA को इम्प्लीमेंट करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी में, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करते हैं, तो हम सबसे पहले एक इसको प्रोजेक्ट का डिफ़ाइन करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स डिफ़ाइन करते हैं, और ये गोल्स डिफ़ाइन करते हैं कि EIA सर्कुलर इकोनॉमी को किस तरह अचीव करेगा। इसके कुछ इंडिकेटर्स, कुछ पैरामीटर्स हम डिफ़ाइन करते हैं। Then we go for the baseline analysis of the environmental resource flow in the project area। तो उसमें जाके हम कुछ baselines वो करते हैं, इनिशिएट करते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट में हमारे क्या माइलस्टोन्स होंगे, ये सारी चीज़ें करते हैं। और फिर वी डेवलप द डिज़ाइन, एंड कुछ उस डिज़ाइंस में हम कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशंस प्रपोज करते हैं जो सर्कुलर इकोनॉमी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करता हो। कुछ चीज़ें जो हम देख रहे हो जो सर्कुलर इकोनॉमी को नहीं कर रही, जहाँ एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें नहीं हैं, जहाँ मटेरियल वेस्ट हो रहा है, तो वहाँ हम चीज़ों को रीयूज़, रिसाइकिल की तरफ लेके आते हैं और प्रोजेक्ट को इस तरह ऑल्टरनेट डिफाइन स्ट्रेटजीज डिफाइन करते हैं कि उसमें सर्कुलर इकोनॉमी को मैक्सिमाइज़ किया जाए। और यही जो है एक प्रोजेक्ट को हेल्दी बनाता है, इन्वायरमेंटल बनाता है, और उसका इम्पैक्ट भी डबल करता है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। और इससे आगे जो है वो रिजवान भाई कुछ स्लाइड्स हैं जो कि शेयर करेंगे और उनकी रिकॉर्डिंग्स करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इंटीग्रेशन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी इन EIA, और अगर हम इसकी इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम इंटीग्रेशंस करने के लिए उसकी रिसोर्सेज की एफिशिएंसी की तरफ हम ध्यान देते हैं, और लाइफ साइकिल को, थिंकिंग को अपने जहन पर रखते हुए इसकी हम EIA की स्टडी करते हैं।
और स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट भी हम देखते हैं कि स्टेक होल्डर्स का के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और स्टेक होल्डर्स जो है वो कितने एंगेज है, दे आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को भी देख लेते हैं और इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हमारी कॉस्ट सेविंग हो सकती है, इन्हांस एफिशिएंसी हो सकती है, रिड्यूस वेस्ट हो सकता है, एमिशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इम्प्रूव क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, और उसके अलावा प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। अगर हम ये सारी चीज़ें अगर हम ना करें तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स को सस्टेनेबल डिज़ाइन नहीं होगा। दूसरा ये कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन में इश्यूज आ सकते हैं और उसके अलावा रेगुलेटरी की रिस्ट्रिक्शन आ सकती है अगर हम इसके ईआईए अगर कंप्लीट ना करें और किसी भी प्रोजेक्ट को हम बगैर ईआईए के अगर स्टार्ट कर लें। मेथडोलॉजी में जो हमने रिपोर्ट बनाई है उसमें जो डेटा हमने मेनली कलेक्ट किया है वो लिटरेचर रिव्यू से, केस स्टडीज़, डिफरेंट केस स्टडीज़ इंटरनेट से हमने ले ली है और वहाँ से ये हमने डेटा को कलेक्ट किया है। और डेटा की एनालिसिस हमने क्वालिटेटिव मेथड्स के ज़रिए हमने उसके अंदर एनालाइज किए, उसके कॉमन थीम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, और उसके अलावा इंटीग्रेटिंग सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल और ईआईए करने के क्या बेनिफिट्स है। तो वो सारी चीज़ें हम स्टैटिस्टिकली उसके अंदर स्टडी की है और उसके अलावा जो वेस्ट जनरेट हो रहा है अगर हम ईआई को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है, और ईआई की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते या सर्कुलर इकोनॉमी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है तो वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है। तो ये हमने डेटा लिटरेचर रिव्यू से ले लिया, केस स्टडी से हमने निकाल के अपनी रिपोर्ट में हमने कंपाइल की। The integration of circular economy principle into EIA is supported by various regulations and directives. For instance, the European Union EIA directives 2014/52/EU emphasize the importance of resource efficiency and sustainable resource management in EIA processes. और competencies जो required है for assessing material and waste की competencies में आपके पास कुछ स्पेसिफिक competencies चाहिए। हमने स्टडी करनी होती है कि लाइफ साइकिल इम्पैक्ट ऑफ मटेरियल यूज इन डेवलपमेंट, उसकी लाइफ साइकिल के इम्पैक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। आपको नॉलेज होना चाहिए सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, और आपके पास तीसरी नॉलेज होनी चाहिए सर्कुलर इकोनॉमी की। विदाउट दीज competencies वी कैन नॉट इंटीग्रेट सर्कुलर इकोनॉमी इनटू ईआईए। चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग सर्कुलर इकोनॉमी इन ईआईए। वैसे तो बहुत सारी चैलेंजेस है लेकिन कुछ मेन चैलेंजेस है वो उनमें से एक ही है कि अवेयरनेस की कमी है, रेगुलेटरी गैप है, डेटा की लिमिटेशन है, रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज करने में रेजिस्टेंस काफ़ी आ रही है जिसकी वजह से हम सर्कुलर इकोनॉमी को ईआई में इंटीग्रेट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर हम इन जो चैलेंजेस है उनको ओवरकम करना चाह रहे हैं तो हमें किन चीज़ों पे तवज्जो देनी होगी। हमें हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर तवज्जो देनी होगी, हमारी जो मैन पावर है उनकी, और उसके अलावा जो जनरल पब्लिक है उनकी भी, स्टेक होल्डर्स की, और जो हमारे पास इन्वेस्टर्स है उन पे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हमें करनी होगी। हमें ऐसे पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट्स बनानी होगी जिसके ज़रिए हम अपनी जो सर्कुलर इकोनॉमी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एआई के साथ। डेटा कलेक्शंस हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, डेटा कलेक्शंस को इजी बनाने की ज़रूरत है, और शेयरिंग डेटा, क्योंकि बाद दफ़ा डेटा की शेयरिंग नहीं होती है। इनोवेशंस लाना होगा हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और इसके अलावा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान कोलैबोरेशंस होनी चाहिए जिसके ज़रिए हम अगर इन चीज़ों के ऊपर अगर हम तवज्जो देंगे तो हम इंटीग्रेट कर आसानी के साथ हम अपनी सर्कुलर इकोनॉमी और ईआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और लास्ट में हमें कंक्लूजन क्या होगा, हम जब अगर सर्कुलर इकोनॉमी और ईआई को इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा जो वेस्ट होगा वो मिनिमाइज होगा, और हमारी जो रिसोर्सेज की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी एफिशिएंसी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा हम सस्टेनेबिलिटी अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स उनमें सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं, और प्रोजेक्ट्स की एफिशिएंसी बढ़ सकती है, टाइम कम लग सकता है, और हमें वक्त पे अपने प्रोजेक्ट्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड।
and these are the websites from which we have taken our data. And thank you, Sal. Thank you for giving us the opportunity to present our presentation. Allah Hafiz.